اجازت احمد صاحب، آپ کا قد کتنا ہے؟ 4 فٹ کا ہے. 4 فٹ قد ہے. لوگ آپ کے ساتھ کیا کچھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا کیسا سلوک کرتے ہیں، یا کچھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کرتے ہیں وہ برا سلوک کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہے نا 90% اچھا سلوک کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ جی 90% لوگ جو ہیں وہ مجھے چھیڑتے نہیں ہیں اور 10% لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو میرے لیے سنت ان کے بارے میں بھی کچھ دل جوئی ان کی ہو جائے، اس حوالے سے بھی آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور جو لوگ 10% ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ کا نام اویس علی. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال. 16 سال. اب آپ کا قد کتنا ہے تقریباً؟ تقریباً 7 فٹ. 7 فٹ قد ہے. آپ کا جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ جب آپ سڑک سے جا رہے ہیں یا گزر رہے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، بھائی مجھے سیلفی دو، میں کچھ نہیں کروں گا، ویسے میرے شوق ہے، میں سیلفی لینی ہے. بعد میں سیلفی لے کر اور یہ دیکھو اٹھا گیا، یہ ویسے مذاق کرتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے لوگوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو کس قسم کا حوصلہ اور کس قسم کی ہمت ان کی ہونی چاہیے کہ جو یہ برداشت کر سکے؟ اللہ اللہ، یہ دنیا کا نظام ہے. کوئی برا بھلا بولتا ہے، کوئی اچھا بولتا ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ خطوط کھولے گئے تو کچھ خطوط تو گالیوں کے نکلے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے عرض کی کہ حضور یہ گالیاں جنہوں نے دی ہے نا، ہم بس ان کے خلاف کیس کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کے خلاف کیس کرو، لیکن پہلے جو مجھے شیخ الاسلام والمسلمین اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، ٹائٹل دیتے ہیں، ان میں جاگیریں تقسیم کر دو، ان کو بھی تو کچھ بانٹو نا، جو میری تعریفیں کرتے ہیں. پھر ان کے خلاف کیس کر دیتے ہیں. تو جب یعنی کہ تعریف کرنے والے کو کچھ نہیں دیتے تو جو برا بھلا کہتا ہے تو اس کو کیوں مار دھاڑ کریں؟ اب جیسے کہ وہ پہلے جو 4 فٹ کے صاحب تھے تو ان کا یعنی 10% مذاق اڑاتے ہیں، پرسنٹیج بھی مطلب انہوں نے اندازن ہوتی ہے، 90% نہیں بولتے کچھ. تو یہ کہ جو نہیں بولتے ان کو بھی دعائیں دیں، 10% کو بھی دعائیں دیں. تو یہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے. میری تعریفیں کرنے والے آپ سمجھتے ہیں بہت سارے تعریفیں کرتے ہیں، ایسی جی تعریفیں کرتے ہیں زمین و آسمان کے غلابے ملاتے ہیں، لیکن مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ سوشل میڈیا میں لگے ہوتے ہیں. اچھا، اب آپ کہتے ہیں 2 مذاق اڑانے والے اور تعریف کرنے والے. میں نے بھی مذاق اڑانے والے اور تعریف کرنے والوں کی بات کی، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے. یہ دنیا کو پتہ، اخبارات میں بھی چند بار آیا، حملہ بھی ہوا، کوشش کی گئی جان لینے کی، وارننگیں بھی آئیں، دھمکیاں بھی ملی. تو میں نے کس سے انتقام لیا، کس سے بدلہ لیا؟ آپ بتائیں کوئی ایسا آپ کو پتا ہو واقعہ کہ میں نے برا بھلا کہا ہو، جا کے بندے بھیجے ہو، پٹوا دیا ہو، پولیس سے اٹھوا دیا ہو؟ تو جو ہر ایک اپنا اپنا فرض ادا کر رہا ہے، سمجھو اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب کو دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہمارے آقا کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں لڑنا ہے، لڑائی ہے، لڑنا تو اپنے نفس سے آدمی لڑتا رہے. شیطان کے ساتھ لڑائی ختم کبھی ہو نہیں سکتی، ان سے لڑتا رہے. ان سے لڑنے کی فرصت ملے تو پھر ٹھیک ہے، دیکھیں گے دوسروں سے لڑنا ہوگا تو. سب سمجھانے کی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ دونوں بھی کسی کو مطلب یعنی کہ آپ کو کوئی چھیڑے اور پھر آپ چھیڑیں گے نا تو یہ زیادہ چھیڑیں گے. یہ نسخہ یاد رکھنا، اگر کوئی چھیڑو آپ چھیڑیں گے نہیں، دیکھیں گے بھی نہیں اس کی طرف، تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ اگر جس نے کسی نے چھیڑا، آپ نے دیکھا، آپ بولے میں زبان سے کچھ نہیں بولتا ہوں، خالی گھور کے دیکھا، تب بھی اس کو تو مزہ آئے گا. تو کچھ نہ کچھ پھر وہ بولے گا. اب کچھ بھی نہیں، نارمل آپ چلے جائیں گے. اگر آپ میں حوصلہ ہے تو مسکرا دیں گے تو بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. تو بولے آپ مسکرا کر بول دیں اچھا میں ابھی کھڑا ہوں، اگر اور کچھ ارمان ہے بھلے آپ نکال لیں. جیسے کس بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پیچھے چلا، برا بھلا ایک بزرگ کو برا بھلا کہتے ہوئے پیچھے پیچھے چلنے لگا. ان بزرگ نے وہ
उसको जवाबी कार्रवाई नहीं फरमाई। फिर जब एक जगह आप रुक गए, वो बुजुर्ग एक जगह आकर रुक गए और फरमाने लगे कि बेटे अभी और कुछ बाकी है तो भी आने दे, क्योंकि अब मैं अपने मोहल्ले में दाखिल होने वाला हूँ और वहाँ लोग मुझे जानते हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले भी हैं वहाँ, तो ऐसा ना हो कि मेरा मोहब्बत करने वाला आपको तकलीफ पहुँचा दे। अब ये जवाब बताइएगा, उसने फिर बाद में क्या बोलना था और क्या झगड़ा करना था और क्या बुरा भला बोलना था। तो ये हमारे बुजुर्गों के अखलाक हैं। अल्लाह करीम हमको उन पर अमल करने की सादत बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, जो बुरा भला बोलते हैं ये देख लेंगे वो हैं गुनाहगार। इन्हें कोई छोटे कद का है उसको ठिंगू कहा, कोई लंबे कद का उसको लंबू कहा, तो ये कुरान करीम की उस आयत मुबारका के तहत आएंगे, वला तनाबजू बिल अलकाब, और बुरे अलकाब से मत पुकारो। तो ये इनको बुरे लक़ब दे रहे हैं, ये कुरान करीम के हुक्म की मुखालफत कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और गुनाहगार हो रहे हैं। जिसको भी लंगू ठिंगू मोटे को मोटू हम कहेंगे या दुबले पतले को कोई इसी तरह की बात करेंगे हम, तो वो यार उसका दिल खुश नहीं होगा कि वो खुशी से झूम उठे, भले मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, वो झेप पिटा रहा है, शर्म अपनी छुपा रहा है, हकीकत में उसका दिल दुखा हुआ है, दुख रहा है। आप गुनाहगार हैं, उसको ईजा पहुंचा रहे हैं। हदीस पाक में मन आदा मुस्लिमन फकद आदानी, मन आदानी फकद आदल्लाह, कि जिसने किसी मुसलमान को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी यानी तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, अल्लाह को ईजा दी। बहरहाल ये कि हरगिज ना करें, अगर किसी को इस तरह का आपने कह भी दिया है तो उसको ढूंढें, तौबा भी करें और उससे माफ़ी भी मांगें, दुनिया में ये सारा निपटा लेंगे, वरना क़यामत में भारी पड़ जाएगा। अल्लाह हम सबको इस्लाम के ज़रूरी उसूलों पर अमल करने की सआदत बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या कहीं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की शरन इजाज़त भी है? जहाँ पहचान के लिए हो ना, कोई पहचान, भाई कौन सा, तो भाई उन्हें जो, अब उसमें भी खूबसूरत अल्फाज मिल सकते हैं, वो नहीं जिसका कद थोड़ा बड़ा है, यूं करके भी बंदा समझा सकता है मौके की मुनासिबत से, तो वहाँ इजाज़त है पहचान के लिए। ये आपने बड़े प्यारे अखलाक की तरफ हमारे रहनुमाई की है कि इसमें भी अच्छा लफ्ज निकाला जाए, या वो नहीं लंबू, इसकी जगह पर आपने माशाल्लाह अच्छा लफ्ज। लंबू बोलने की तो इजाजत नहीं मिलेगी पहचान के लिए। लंबू उसके लिए फिक्स नहीं है, लंबे कद वाला ये कम बुरा लगेगा। देखो कोई आंखों की रोशनी से महरूम है, जनरली उसको अंधा बोलते हैं, लेकिन किसी मखसूस फर्द को हम बोलेंगे ना उसको बुरा लगेगा। भाई वो कौन से, वो नाबीना है, तो उनको पता भी चलेगा ना कि ये नाबीना बोला, तो उसको झटका नहीं लगेगा। तो ये सब सीखने वाली बात है। मैंने एक बार, मुझे पता नहीं था, मैंने सालाना इज्तिमा था, ये किसी इलाके में सालाना इज्तिमा था अपना, कराची में था, तो मैंने वो कोई मसाइल बयान किए, उसमें वो लफ्ज कसाई बोलता रहा मैं, कसाई गोश्त में उर्फ से ज्यादा अगर हड्डी डाल देंगे तो गुनाहगार होंगे वगैरह। ये है मसला, ये कि जितना है मतलब हड्डी डालने का जो मामूल है उतनी हड्डी डालें, ये नहीं कि वो कट बारा हड्डी को बोटी के नीचे छुपाई और ये रखा तराजू में, ये यूं भी करते देखा मैंने, तो ये धोखा है ना कि छुपा रहा हड्डी को। तो जितना मामूल है वो उतनी हड्डी डाल सकता है बोटी में, सर सारी हड्डियां फेंकना, तो वो जो बोन लेस गोश्त होता है बोटी, फिर उसका अलग चार्ज होता है। खैर, तो मैंने इस तरह के मसले बयान किए होंगे, तो कुछ आए होंगे इस तरह के लोग, तो मुझे किसी ईसाई भाई ने बताया कि ये लोग आए थे यार, ये तो नाराज हो गए, ये बोलते हैं हमको कसाई क्यों बोलता है, हम तो कुरैशी हैं। अब ये लेने के बाद मुझे तो पता ही नहीं था, तो फिर मैंने मालूमात की थी भाई इसको अगर कस्साब बोले तो, बोला कस्साब बोलने में इतना नहीं मतलब इनको बुरा लगता, कसाई बोलने में ज्यादा बुरा लगता है,
ये उस वक्त मुझे पता चला, मेरे को पता ही नहीं था, वरना मैं क्यों कसाई बोलता इनको। और ये तो थे भी नहीं, मैं तो जनरल मसला बयान कर रहा था। हमारे यहाँ आमतौर पे लोग कसाई बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को अगर नोट किया, मैं कम मतलब कभी निकल जाए अलग बात है, आमतौर पे मैं कसाब भी नहीं, बल्कि मैंने ये मतलब गोश्त फरोश बोलता हूँ। गोश्त फरोश यानी गोश्त बेचने वाले, तो इससे बुरा नहीं लगेगा। तो हम क्यों किसी को मतलब चुभती हुई बात काहे को करें, क्या जरूरत है? हमको तो सबको मस्जिदों में लाना है। चुभती भी बात करेंगे तो मस्जिद में आएगा कौन? भाई नमाज नहीं पढ़ता, तुझे शर्म नहीं आती? पता नहीं है कि नमाज फर्ज है, जहन्नम जाएगा जहन्नम में, तो बताओ कोई नमाजी बनेगा? और लड़ाई करेगा, मार धाड़ में उतर आएगा। तो ये तरीकेकार भी नहीं है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह की तरफ बुलाओ अच्छी नसीहत और पक्की तदबीर के साथ। तो ये कि इल्म भी होना चाहिए और अच्छा अंदाज, बेहतर अंदाज होना चाहिए। किसी को भी बुलाएंगे, रोजा नहीं रखते हो, हराम खोर हो, रोजा खोर, तो कहाँ रोजा रखेगा यार? वो मोहब्बत से, प्यार से फजीलत बताएंगे रमजान शरीफ की, आप रोजे की फजीलत बताएंगे तो उसका दिल थोड़ा नरम पड़ेगा, पसीजेगा। तो नेकी की दावत में इस तरह के अंदाज, सख्त अंदाज, तुर्श लेजा, झाड़ना, डांट डपट करके समझाना, ये काम दिखाता नहीं है, बल्कि काम नरमी से होता है फलाह कामरानी, नरमियो आसानी में। हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल मोहम्मद। आपके इस बयान पर एक मुख्तसर सा वाक़या मुझे याद आ रहा, दिलचस्प वाक़या था। एक शख्स ज़ोहर के लिए जा रहा था तो देखा कि एक बंदा दरख्त पर चढ़ा हुआ है, अब उसी का अपना दरख्त था और उसे कोई फल तोड़ रहा था। दोपहर का वक्त था, धूप थी, तो वो शख्स जो जा रहा था नमाज के लिए, उसने भी अपने मुंह पर कपड़ा डाला हुआ था, और तो वो कह रहा था भाई नमाज का वक्त हो गया, आ जाओ। तो कहा आप जाओ, आ रहा हूँ। भाई कह रहा हूँ ना आ जाओ, तमीज़ नहीं है, नमाज वक्त तो पढ़नी होती है, गधे कहीं के। तो बोलता गधा किसको बोला, चल अभी आता हूँ नीचे। वो चीज से नीचे आने लगा तो वो भाग गया, अरे मारेगा। खैर बात आई गई हो गई। असर में वो गया, उसको समझ तो आ गई कि जोर में मैंने भूल तो मारी थी। असर में जब वो जा रहा था देखा तो वो दोबारा वो अपने दरख्त पर चढ़ा हुआ था, फल तोड़ रहा था। तो उसने नीचे से सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया कि भाईजान क्या हाल है, माशाल्लाह लगता है बड़े फल लगे हैं। बोला अल्लाह ने आपके कितने माल में बरकत दी, अल्लाह ने किस आपको रिस्क दिया है। आओ ना जरा उसका शुक्र अदा करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत दे, आपकी जान में माल में बरकत दे। वो नीचे उतरा और कहने लगा भाई एक आप हो जो आप मुझे नेकी की दावत दे रहे हो, एक वो शख्स था जो मुझे गधा कह रहा था, एक बार मुझे मिल जाए फिर देखता हूँ कि गधा कौन है कौन नहीं है। बोला चलो चलो नमाज के लिए तो चलो। तो यूं वो उसको नमाज के लिए नेकी की दावत देकर ले गया। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी मिसाल दी। बेशक नरमी से काम होता है, वो सख्ती से तो काम होता ही नहीं है, बल्कि बुरे काम भी होते हैं वो भी नरमी से ही होते हैं। वो एक किस्सा उसमें लिखा है अपने मुफ्ती शेखुल हदीस अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि एक चोर था, डंडा लेकर गली में इंतजार कर रहा था कि कोई निकले। तो एक गठड़ा लेकर निकला कोई बंदा, तो उसने वो लुटेरे ने वो डंडा उसकी गठड़ी पे मारा, जोरदार छनाका हुआ। ने कहते अबे बोल इसमें क्या है, तो छनाका तो हो गया था। तो उसने भी कहा कि पहले चूड़ियां थी, डंडा लगने से पहले चूड़ियां थी, डंडा लगने के बाद अब इसमें कुछ नहीं है, कांच की चूड़ियां थी वो टुकड़े हो गए, अब न इसके काम के न इसके काम के। तो ये कि वो गुनाह करने के लिए भी मतलब नरमी साथ देती है, तो नेकी करने में तो नरमी करनी है। तो मैंने एक मिसाल दी, तो गुनाह करने वाले नरमी कर रहे होते हैं। ताजिर खासकर व्यापारी, किसी को माल पहनाना है नाकिस, उसको लूटना है, धोखा देना है, तो नरमी तो कर रहे होते हैं। चाय भी पिलाते हैं, बोतल भी पिलाते हैं,
और चाय पिलाकर पूरी केटली छाप ही लेते हैं ना, बोतल पिलाकर पूरा कैरेट हासिल कर लेते हैं, बोटी डाल के बकरा खींच लेते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करके। तो ये कि नरमी, हम अल्लाह के लिए नरमी करें तो इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार है, सवाब मिलेगा। जो भी अमल करें अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए, जबकि वो अमल वाकई ऐसा हो कि जिससे अल्लाह की रजा भी हासिल होती हो, गुनाह से हासिल नहीं होती अल्लाह की रजा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।